before telling that it should be recorded. Now recording is on. I think all of you can see it. So the date of birth is what that is required. Then the time of birth which is required. शायद आपके नाम से भी पहले आपका date of birth आता है. So it is started with a number. So my life starts with a number. Certainly it is going to end with a number. That is a date. Fine. So how the numbers evolved? First, you need to understand that since beginning, when the first one who talked about the number, he must have understand the number one. So one is known as a god of all numbers. दुनिया में सबसे पहले नंबर जो आया वो वन था. तो अगर आपने पहले केव्स में देखा होगा, हिस्ट्री की बुक्स में हम पढ़ते थे, तो people used to find out after how many days will it be full moon or low tide, high tide, जो भी होता था. तो वो सारे के सारे we were depicting it by the lines. So almost all people were knowing the first number that they knew was one. So someone who was asked how many mangoes do you have, और उस समय एनिमल हस्बेंड्री खूब चलता था, तो अगर किसी ने पूछा आपके पास कितनी गोट्स है, तो मे बी द पीपल आर ड्रॉइंग इट बाय दिस, दीज आर द नंबर ऑफ गोट्स दैट आई हैव. ठीक है. सो द फर्स्ट नंबर दैट वाज नोन टू अस, इट वाज 1. And people must have asked how many mangoes are there, how many bananas are there, how many kids do you have, आपके कितने children है, ठीक है, कितने आपके घर है. So all that started with a number 1 2 3 4 5 6. जैसे जैसे human development आया, people started converting them with some symbol, and we named them as a natural number because nature has given us these number. किसी ने 2.5 मैंगो नहीं देखा होगा पेड़ पे, किसी ने 2.25 मैंगो नहीं देखा होगा पेड़ पे, किसी ने 2.7 मैंगोज नहीं देखे होंगे पेड़ पे, किसी ने 2.7 आदमी नहीं चलता हुआ देखा होगा. So that's why the nature has given us the number. We name them as a natural number. पर शायद एक दिन ऐसा हुआ होगा, एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बच्चे ने पूछा माँ कितने मैंगोज हैं, और वो एप्पल ट्री होगा. उस एप्पल ट्री पे बच्चे ने पूछा कितने मैंगोज है, तो माँ ने कहा होगा कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो, शून्य. So the zero also came in being, but zero means a number is not existing. So the moment when I am saying zero and I take all natural numbers, my life completes there and I name it as a whole number. शायद आने वाले को बड़ी तृप्ति हुई होगी, उसने कहा होगा मैंने जितने भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में नंबर, वो सारे नंबर मुझे पता चल गए, तो उसने उसका नाम दिया होल नंबर. क्या नाम दिया उसका? होल नंबर. तो जीरो व्हेन कंबाइंड विद ऑल नेचुरल नंबर्स, इट इज नेम्ड एज अ होल नंबर. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देन. फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या करा होगा, सोसाइटी में रहना चालू करा होगा, धीरे धीरे वो मासेस में रहना चालू किया होगा, धीरे धीरे विलेजेस बने होंगे, कम्युनिटी बनी होंगी, और शायद ऐसा हुआ होगा कि एक दिन किसी के घर पे कुछ मान लो गोट नहीं थी, या मान लो उसके पास मैंगोज नहीं थे खाने के लिए, तो उसने क्या करा होगा, पड़ोसी से लिया होगा 3 मैंगो उठा के. अब किसी ने, पड़ोस वाले ने आया उसके पास मैंगो मांगने के लिए, उसने कहा मेरे पास 3 मैंगो, लेकिन वो भी उधारी के. सो ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 3 मैंगोज. So if someone asks Nirav Modi, he say, yes, I have 2000 crore, but this is 2000 crores ka loan. The moment I am saying loan, I am attaching a minus sign before it. तो शायद इंसान ने जब रहना इकट्ठा चालू किया होगा सोसाइटी में, और उसने ट्रांजैक्शन चालू किया होगा, तो उसको जितने ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 and goes to infinity, he must also start understanding these number with a negative sign, means they don't have it, they have already taken a loan, they have already taken a lend. I hope it is clear. So that is why these are named as a zero with positive and negative is same. These are known as a integers. इनको नाम दिया हमने integers. ठीक है. धीरे धीरे, if you want, you can take a screenshot of it. Else I'm moving to the next one, though nothing great is discussed here so far. So धीरे धीरे इंसान को लगा होगा कि एक दिन क्या होगा, घर में 3 मैंगोज थे और 5 बच्चे थे, लड़ने लगे. तो 3 मैंगोज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 किड्स. So how much each one is going to do? तो माँ ने पहली बार चाकू लेके इसको काटा होगा मैंगोज को, तो सबको 0.6 मैंगोज मिले होंगे. So when you were dividing this thing, when a thing is not complete,
It is not given by nature. It is what human has done. So it dissected, it divided something. So we named it as, हमने इसको नाम दिया fraction. क्या नाम दिया इसको? Fractions. एक दिन 7 मैंगो होंगे और 2 बच्चे थे, तो माने करा होगा 3 मैंगो तो होंगे, 6 मैंगोस हो गए, प्लस एक मैंगो को आधा आधा काट के, और जिसको हम 3.5 भी लिखते हैं. So these things are known as fraction. जहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. In case if your numerator is more than the denominator, then it is known as a mixed fraction. So you got a proper fraction, you got a mixed fraction. Mixed का मतलब you got 7/2 is written as a 3.5. So 3 is an integer. An integer is combined with a fraction, a proper fraction. That's why it is known as a mixed fraction, or sometimes it is known as an improper fraction as well. तो फिर इंसान ने उस सब का नाम दिया रैशनल नंबर. उसने कहा जो कुछ भी नंबर है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, उसको उसने नाम दिया रैशनल नंबर. Anything that can be written in the form of ratio, p by q, is known as a rational number. जो नंबर को आप रेशियो में नहीं लिख सकते उसे इरैशनल नंबर कहते हैं. इंसान को हमेशा से एक चीज में बहुत इंटरेस्ट था, दैट वाज मून. कि यार ये क्या लटका हुआ है, चमकता रहता है, कभी कभार शेप चेंज करता रहता है, ये है क्या? So people were very much interested in the moon because the shape of the moon is round. They started understanding a circle. तो एक बार एक आदमी ने एक वायर लाया होगा, उसको कन्वर्ट करके सर्कल बनाया होगा. जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो इसके अंदर फिट हो सकती थी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो थी, उसकी लेंथ L ले लिया होगा. तो क्या हुआ, ये जो मान लो दिस इज X मान लो, और ये लेंथ जो है L है, L को जैसे ही उसने X से डिवाइड करा होगा तो उसको कुछ वैल्यू आया होगा जो 22/7 के बराबर है. धीरे धीरे उसने बड़े बड़े गोले लेना चालू किया, तो ये जो वैल्यू है वो और ज्यादा चेंज होती रही, 3.1472 ऐसे करके. So far thousands of the digits are known after the decimal for the value of pi. जो जितने भी ये नासा, इसरो, जितने भी ये स्पेस रिसर्च मिशन है, उसमें जितनी एक्यूरेट वैल्यू आपके पास पाई की है, उतना ज्यादा आपका आंसर सही है. मोर ओवर, जो पाई की वैल्यू को हम 22/7 लिखते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. एज यू इंक्रीज the circle, you will find this is going to give you, irrational number is going to give you all non-repeating and non-terminating. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें खत्म नहीं होता भैया इसका डेसिमल नंबर्स. जो रिपीट ना करे, जो खत्म ना हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर. यू कैन नॉट राइट देम इन रेशियो, तो इसीलिए इसे इरैशनल नंबर कहा जाता है. अदर इरैशनल नंबर दैट वी नो आर √2, √3, √5. These are also irrational number. √2 की वैल्यू अगर आप देखो 1.4143 ऐसे करके कुछ चलता रहता है. So nothing is going to repeat. 41 will never come again. ठीक है, तो ना तो रिपीट करता ना कभी खत्म होता, अनंत काल तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है. ऐसे नंबर को इरैशनल नंबर कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज से यस, so that I will know that you are not sleeping. Okay. Rishita is saying wasn't zero found. हाँ, जीरो फाउंड किया गया. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 6th सेंचुरी BC में, लोग पता नहीं बहुत सारी चीजें बोलते, आर्यभट्ट हैज इन्वेंटेड दिस. 6th सेंचुरी BC में जब लॉर्ड बुद्धा थे, तो ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट शून्य महाशून्य. अगर आप उनकी फिलॉसफी देखो तो होल फिलॉसफी इज रेस्ट ओवर शून्य. तो बुद्ध ने एक ही चीज कही है. बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ शून्य हो जाओ, यू बिकम जीरो. मतलब इन स्पिरिचुअलिटी इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो व्हेन यू बिकम नल, व्हेन यू बिकम जीरो, यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है,
निकिता इज सेइंग रामानुजन, नहीं जी, रामानुजन तो बहुत बात की बात है सर मैडम, ठीक है। ही वाज द निकिता रामानुजन इन्वेंटेड इन्फिनिटी, मूवी भी आई है मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। सो जीरो वाज अ वेरी ओल्ड नंबर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड प्लीज डू वॉच दैट मूवी, अ ब्यूटीफुल मूवी ओवर। तो आगे चलते हैं। तो हमने जो अभी तक सीखा, हमने सीखा नेचुरल नंबर, हमने उसके बाद सीखा होल नंबर, हमने उसके बाद सीखा इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नल इंटीजर। कई बार क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर, तो कोई बताएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे? क्विक, डज नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव? नो, इट इज पॉजिटिव प्लस जीरो एज वेल। नॉन नेगेटिव रिश्ता, जो नेगेटिव ना हो, 0, 1, 2, 3, these are positive as well as non-negative. Yes, Nishant is saying 0 to infinity. You are right, Nishant. Yeah, it is start from 0 as well. You are also right. Anjali is also correct. And it will start from 0. तो हमने इंटीजर्स के बारे में बात करी, इसलिए क्योंकि कई बार लिखा था हाउ मेनी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, बच्चे उठा के नेगेटिव चिपका देते हैं। अरे भैया नॉन पॉजिटिव बोला है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग थोड़ा, ठीक है। सो अगर बात करें इंटीजर्स बाद हम बड़ा रैशनल नंबर, और उसके बाद हमने एक और नंबर इसमें ऐड किया, दैट वाज इरैशनल नंबर, इट वाज समथिंग न्यू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये सारे नंबर रियल है, दीज आर रियल नंबर्स। लेकिन जो नंबर रियल नहीं रहे, कोई व्यक्ति जीवित है, जैसे ही उसका देहांत हो जाता है, टू डाइड, सो आई अटैच आयोटा विद इट। जैसे हर व्यक्ति जो जिसका देहांत हो गया उसके आगे स्वर्गीय लगाते हैं या लेट वर्ड लगाते हैं, नंबर्स में मरने पे उसके आगे आयोटा लगाते हैं। आयोटा की वैल्यू शायद आपने पढ़ा हो, √-1 कहते हैं। सो एनी रियल नंबर व्हेन अटैच विद आयोटा, दैट गिव्स यू इमेजिनरी नंबर। और इस सब के कॉम्बिनेशन को, इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को, कमबख्त जिसने नाम दिया होगा वो, उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता होगा, उसने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज नेम्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हूं आपको। 7.5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो, तो when you cancel the decimal you write 1, any digit coming after this write a 0 for it। मान लो 5 1 भी होता तो एक और 0 लगा देते हैं, मान लो 2 होता तो एक और 0 लगा देते हैं। तो zeros are added on the basis of the number of digits that is coming after the decimal, and digit that you cancel you will write a 0 for it, okay? So that I will say 7512 upon 10,000। कैंसिल कर लीजिएगा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर करना चाहे, मतलब कोप्राइम वैल्यूज आनी चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं, सब कुछ कैंसिल, कॉमन वैल्यू कैंसिल कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1/3, उसकी वैल्यू होती है 0.3333333333। ये तो कभी खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट तक जा रहा। तो यहां तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, यहां कैसे करूंगा सुनिएगा। 0.3 जब भी कोई रिकर करेगा उसके ऊपर बार लगा लेते हैं, इसे बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिकरिंग, रिपीटिंग। अ नंबर इज रिपीटिंग हियर, अ नंबर इज recurring here. So when you try to convert this bar into the fraction, cancel the decimal and the bar, that is the first thing that you need to do. Divided by 9, because there is only one recurring value, you will write 9 for that. जैसे आप डेसिमल के बाद कोई वैल्यू आते हैं उसके लिए 0 लिखते हैं, तो कोई रिपीटिंग वैल्यू जो होगा उसके लिए आप 9 लिखोगे, तो आपका आंसर आएगा 3/9 जो होता है भाई वो 1/3 के बराबर होगा। मान लो आपको नंबर इज गिवन एज अ 2.71 बार, मतलब 2.7171717171 चला जा रहा है अनंत काल तक। So if my value of x is equal to 2.71 bar, the first thing that I need to do, I'm telling you first the conventional way, 1 के बाद उतनी 0 लगाओ जितने वैल्यू रिपीट कर रहा है। There are two values recurring, I'll attach 2 0 before it, that gives you 271.71 bar।
अगर आप x को 100x से घटा देते हैं तो आपको मिलता है 99x विच इज इक्वल टू 271 माइनस 2। इसमें जो 0.71 है 0.71 वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 269 अपॉन 99। योर आंसर विल कम आउट टू बी 269 अपॉन 99। QCOM BTD प्लीज close your camera. Okay, that is how you could do it. I'm sure you can do it easily. Any doubt, any confusion you can ask. Next thing, okay. Please repeat this part. Doubt, please repeat again. Okay, I will do that. मान लो there is a number x is given as 6.93 बार। 93 बार मतलब 93 is recurring। तो मैं ये कहता हूँ जितनी रिकरिंग वैल्यू हो डेसिमल के बाद 1 के बाद उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कीजिए। 100x will come out to be 693.93 बार। Subtract x from 100x, you will get 99x is equal to 693 minus 6। क्योंकि ये रिकरिंग वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिकरिंग अनंत काल तक चला जा रहा है, तो हम ऐसे कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगा वो 693 माइनस 6 अपॉन 99 आएगा और 687 upon 99 is your answer. That is what is to be done. अभी बोलिए इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। If it is clear, say okay, yes, it's clear. Why subtracting only 6, my dear? Okay. 0.939393 बार यहाँ सिक्स पॉइंट नाइन थ्री बार का होता है ऐसे कर इनफाइनाइट अनंत काल तक चला जा रहा है। ये x था, आपने 100x से मल्टीप्लाई करा, आपने कहा 693.9393939393 अनंत काल तक। कैन आई से दे आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इन्फिनिटी में से किसी समुद्र में से अगर आप एक पानी का ड्रॉप निकाल लेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे ये लेक बन गया है सर, आप कहेंगे सर ये सेम है सर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप सेपरेट करते हैं 100x में से, जब आप x सेपरेट करते हैं 693.93 बार माइनस 6.93 बार आप सेपरेट कर रहे हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 100x माइनस x इज 99x इज इक्वल टू क्या आया 693 माइनस 6। x is equal to 693 minus 6 upon 99 is your answer. Is it clear now, Rishita? Okay, great. So this is how you could solve these type of questions. Let's take one more example. Say y is equal to 72.345 bar. Fine. This is the number. Now the recurring value is coming after one digit, after the decimal. So just after the decimal values are not recurring, it is recurring later on. The first thing that you need to understand is that you need to start recurring value just after the decimal. तो जो भी recurring value है, जो भी repeating value है, वो decimal के just बाद आना चाहिए। So the moment when you multiply it by 10, you will find the recurring value will start just after the decimal. Now there are two recurring values, you will multiply it further by 100. So that one recurring value will come before the decimal. Now you will subtract it. 1000 में से 10 गया तो it is 990y is equal to 7
72345 माइनस 723, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. So why 100x? Nishant has asked it. My dear Nishant, there are two values which are recurring. So after one, I'll attach two zeros before it. The number of recurring digits will decide how many zeros would be attached. अगर 3 डिजिट आ रही होती जो रिकरिंग होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, 4 डिजिट रिकर कर रही होती तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता. अगर एक रिकरिंग वैल्यू होती भाई साहब तो मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करता. क्या निशांत आपको ये समझ में आया? Okay. So 990y is equal to 72345 minus 723. Y comes out to be 72345 minus 723 upon 990. I hope it is clear. Now this is how a person is doing when you are in a school. But अगर ये मेथड आप लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. एग्जाम में ये लगाओगे तो सब बेकार है. तो मैं कुछ आपको रूल बता रहा हूं थ्रू विच यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर. पहला मैं x की वाली वैल्यू यही वाला लेके चलता हूं. ठीक है, the same one that I have discussed earlier. X was equal to 6.93 bar. पहला स्टेप सुनिएगा. Whenever you want to convert it in fraction, cancel the decimal and the bar. Decimal और bar जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी. Subtract the number which is not carrying a bar. वो नंबर घटाइए ऊपर वाले नंबर में जिस पे बार नहीं है. 6 पे बार नहीं था. For every recurring value, write a 9. How many recurring values are there? There are 2 recurring value. I write 2 9. तो मेरा आंसर क्या हो गया? x is equal to 693 minus 6 upon 99 is my answer. दोबारा सुनिएगा. कैंसिल द डेसिमल एंड द बार. बार उड़ा दो, डेसिमल उड़ा दो, पूरा नंबर आ जाएगा. वो नंबर घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है. और हर रिकरिंग वैल्यू के लिए, हर वैल्यू जो रिपीट करे उसके लिए आप 19 लिख रहे हैं. तो आपका जो आंसर हो गया है वो हो गया 693 माइनस 6/99, जो कि मैंने यहां पर भी किया था. आप देखो दोनों के दोनों सेम आंसर है. मैंने जानबूझ के घटाया नहीं था इसलिए. सो आई होप इट इज क्लियर. Akashdeep, the number of recurring value will decide how many nines will be written here. अगर एक वैल्यू रिपीट करेगा आकाशदीप तो मैं एक ही 9 लिखूंगा. अगर 4 वैल्यू रिपीट करेंगे तो मैं 4 9s डिनोमिनेटर में लिखूंगा. तो नंबर which are recurring will decide how many 9s will be coming in denominator. I hope it is clear. Let's take the other one. ये y हम डिस्कस कर रहे थे, ये 72.345 बार सिर्फ 5 के ऊपर था, 45 के ऊपर था. I told you cancel the decimal and the bar. Subtract the number which is not carrying a bar. 723 इस नंबर के ऊपर बार नहीं है. Divided by for every recurring value write a 9. But there is a number coming after the decimal. एक नंबर ऐसा है जो डेसिमल के बाद जा रहा है, बाद आ रहा है और उसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0 लिखो. तो योर आंसर इज 72345. डेसिमल उड़ाओ, बार उड़ाओ, माइनस वो नंबर घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है. हर नंबर रिपीट कर रहा है उसके लिए 9 लिखो, और हर नंबर जो डेसिमल के बाद आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए आप 0 लिखो. तो आपको जो सॉल्व करना है क्वेश्चन वो इसी मेथड से सॉल्व करना है. जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मैं पहले 2 स्टेप में आपको बता चुका हूं. अगर ये क्लियर है तो ठीक है, प्लीज राइट. ओके, एल्स आस्क यू क्वेरी. ओके, क्लियर. उत्सव, सृष्टि, निखिल, त्यागी, मुस्कान, एवरीवन अंडरस्टैंड इट. मानवी, भव्या, सागरिका, everyone says yes, it is clear. Surbhi Chatwal is welcome. She's saying okay. Rishita is also getting it. Shivam Yadav, very nice. Now look at this. Sir, if there are two numbers before the bar, if there are two numbers after the decimal which are not carrying a bar, I'll be writing 2 zeros for them. So let's take a number. Z is equal to 6.3147. Bar is over 47. Please write it in fraction.
Write the value in fraction. I want an answer. Muskan is the first one to answer it. Very good, Muskan. Very nice. Ritik, Vinny, Sagarika, Palak Singhal, Nishant, Nidhi, Ritik. Same answer. Divyanshu Verma, Anjali, Priya Garg, Ujjwal, Srishti, Akashdeep, Surbhi Chatwal, Utsav. Very nice. So most of you got the answer. What I will do is I'll cancel the decimal and the bar. I'll subtract the number which is not carrying a bar. For every recurring value, I'll write a 9. There are two values coming after decimal. I'll write a 0 for them. Saloni, you are right. So this will be your answer. Now my question is, by what number? This is a cat question. Should 0 point ABC bar. ABC bar मतलब ABC is a recurring value here. Be multiplied to get an integer. Integer मैं आपको बता चुका हूँ. Options are 1 by 99, 1 by 999, 2997, 99, where A, B, C are not 0 simultaneously. Please tell the answer. Okay. So Ritik, Ujjwal, Archit, Nishan, check your answers. Nikhil, very nice. You got it correct. ऋषिता जी, आपने 2 के बाद क्वेश्चन मार्क मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं है मैडम. वाओ निकिता, गुड, यू गॉट इट करेक्ट. सवाल पढ़ना भी अपने आप में एक कला है. I wish all of you have read it carefully. Divyanshu, you got correct answer. Roshan, I am recording this session, so if you want to watch it, I'll forward it to you. Next 2 days, you can watch it. If you have emergency, you can leave, but you can watch it within 48 hours. Because load over this, web services is really very high. Okay, next. So I think if you would have read this question carefully, most of you must have got this correct. Say the number A is equal to 0.ABC bar. I told you, cancel the decimal and the bar. I got ABC. अंजलि जी, आपको LRDI का सेशन नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए. एक्चुअली में वो क्लाउड में नहीं है, वो मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ था. मेरे ख्याल से आप उस समय लॉगिन नहीं होंगी, मैंने बताया भी था.
मैं आपको ड्राइव में वो शेयर करता हूँ, आप मुझे ना अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, आई विल शेयर इट ऑन ड्राइव, ठीक है? वो आई थिंक दैट विल वर्क। और जिसको भी चाहिए होगा कल रात का जो एलआरडीए का सेशन था, आप मुझे अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, आई विल शेयर इट ऑन ड्राइव। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा आपको, पक्का मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू, आई रिकॉर्डेड इट। सो आई विल कैंसिल द डेसिमल एंड द बार, आई विल सेपरेट अ नंबर व्हिच इज नॉट कैरिंग अ बार, जिसके ऊपर बार नहीं है वो जीरो ही था और तो कुछ नहीं था। फॉर एवरी रिकरिंग वैल्यू आई विल राइट अ 9, so there are 3 recurring value, I'll write 3 9s. So A will come out to be ABC by 999. सवाल में पूछा हुआ था किससे गुना करूं ताकि ये इंटीजर आ जाए। अच्छा, ABC खुद इंटीजर है, 999 भी इंटीजर है। अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मुझे डिनोमिनेटर की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, तो मैं K की वैल्यू जो आएगा वो 999 आना चाहिए थी। तो 999 तो कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भैया, अगर K की वैल्यू 2997 होगा जो कि ट्रिपल है 999 का, तो 999 will get cancel out and A will come out to be ABC into thrice of 999. When divided by 999, this get cancel out, you'll get thrice of ABC. ABC is already a natural number. When tripled, then also it gives you a natural number. Integer is also a natural number. Fine. I hope it is clear that why the answer is 2997 and not others. Okay, Ritik, you got it. Nishant, you also got it. Shriyans has got it. Bhavya got it. Very nice. Okay, Archit, it's clear. Srishti, Priya Garg, all of you understand this. Let's move to the next one. So I'm sure all of you understand it. The next topic, so you know about how the number behave. तो थोड़ा बहुत ना धर्म की बात करते हैं। कोरोना वायरस में लोग पूजा पाठ तो छोड़ ही दिया लोगों ने, मंदिर वगैरह जाना, गुरुद्वारे, मस्जिद, तो घर में बैठ के पता नहीं कुछ तो करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, जब बहुत सारे लोग हो गए ना, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको फेथ उनके अंदर बनाने के लिए उनको एक डर दिया गया। कुछ लोग एग्री नहीं होंगे इससे, बट that fear that was created, the fear was created so that the society can behave normally. तो क्या अच्छा क्या बुरा वो कैसे डिसाइड करेगा, आने वाली जनरेशन कैसे डिसाइड करेगा? तो भैया धर्म पैदा हुआ। तो anyone who believes on Christ becomes a Christian. So in numbers also they also started forming the religion. तो उन्होंने कहा हर दूसरा नंबर जो 2 का मल्टीपल है भैया वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ क्या? 2. तो I'll say the even number are 2, 4, 6, 8. Anyone that believes on one thing, anyone who believes on Muhammad Sahab, who believes on Quran Sharif is known as a Muslim, Muhammadian. So anyone that is a multiple of 2, we say they are even. और रिलीजन में अच्छी बात या बुरी बात, मैं तो बुरा ही कहता हूँ, लेकिन फिलहाल कई लोग कहेंगे अच्छी बात है। रिलीजन के साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो कहता है मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब खराब है। तो यहाँ पर 2 के इवन नंबर के साथ भी ये मल्टीपल है कि भैया मैं 2 का मल्टीपल हूं तो मैं ही सही हूं, बाकी सारे तो ऑड है, दे आर ऑड। ठीक है, सो बाकी लोगों ने उसे कहना चालू किया कि ऑड है। निशांत जी 0 पे तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी, मालिक बताऊंगा इवन है ऑड है। तो क्या हुआ, जो नंबर की काउंटिंग हुई वो 1 2 3 4 5 से हुआ नेचुरल नंबर। ह्यूमंस का जो हुआ उनको लाइन पे खड़ा किया गया, उनसे कहा हर दूसरा आदमी जो मोहम्मद साहब को मानता है वो मुस्लिम है। ये 1 3 5 7 वाले बच गए, इनको कहा अरे कमबख्तों तुम काफिर हो, तुम किसी को नहीं मानते हो। सो दे आर ऑड, you are odd, I am odd because I don't believe only on one. So anyone who believes on something will become even. Anyone who does not believe on one is the one which is odd, and that's why people wanted to convert. Now the Nishant has asked me, सच बताओ ना सर 0 odd है even है? भैया मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। -1 is not an odd number, -2 is not an odd number,
तो ये जो इवन ऑड आए वो तभी तो होगा जब कोई एग्जिस्टेंस में होगा, तो दीज आर एग्जिस्टेंट, दैट्स व्हाई द इवन एंड ऑड आर क्रिएटेड फ्रॉम हियर। आई होप इट इज क्लियर। हालांकि इस पे बहुत बड़े इशू बन चुके हैं, कोर्ट में केस जा चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। जीमैट के एग्जाम में एक बच्चे ने काफी पेनल्टी भरने के लिए कहा जीमैट से, वो सारे इश्यूज है, बट जनरली नेचुरल नंबर को ही ऑड और इवन में बांटा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया तो हाँ लिख दो यार एक बार। ओके फाइन। ओके सो इंसान यहीं पे नहीं रुका। जब रिलीजन बन गया फिर भी लगा इंसान ने कि यार मैं तो कम से कम यूनिक हो, उसकी यूनिकनेस वाली आदत कभी गई नहीं। आप किसी भी इंसान को बोलो, उसने कहा आप भी यही हो, कहता लेकिन मैं हूं तो सही है, लेकिन मैं राजपूत हूं, ठीक है, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों में भी मैं ये वाला ब्राह्मण हूं, गोत्र ये है। तो वो बीमारी जो है वो कभी खत्म नहीं हुई इंसान को, क्योंकि रीजन ये है कि उसने हमेशा माना कि वो यूनिक है। तो यहां पर भी यही हुआ कि जब रिलीजन बन गए तो लोगों ने कास्ट में डिवाइड किया। कास्ट एक वर्ड है जो पहले बता दूं कहीं भी संस्कृत या कोई भी इंडियन लैंग्वेज में आज तक कास्ट जैसा वर्ड नहीं आया। ये वर्ड जो है ये फारसी वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि जो नंबर 3 पे बिलीव करेगा, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू चमड़े का काम करता है, यू बिलोंग टू माई कैटेगरी। अगर तू पूजा का काम करता है तो तेरे को मैं पादरी बना दूंगा, तेरे को मैं ब्राह्मण बना दूंगा, तेरे को मैं ये बना दूंगा। तो उन्होंने कहा एनीवन हु वर्शिप, ठीक है, वो काजी बन गया। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सारे नंबर चलते गए। हमने कहा एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स इन द टेबल ऑफ 3। तो शायद वहां से टेबल की उत्पन्न हुआ 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। और इसको और समझने के लिए दुनिया में हर तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल है। आजकल तो कोरोना की बात चल रही है कि कौन कोरोना से अफेक्टेड है या नहीं है। Every third number in the world is a multiple of 3. Similarly, every fourth number in the world is a multiple of 4. तो जो भी दुनिया में हर चौथा नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब है अगर आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर उठाते हो, उनमें एक ना एक नंबर 4 नंबर का मल्टीपल होगा। एंड आउट ऑफ दीज 4 नंबर देयर विल बी 2 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या कोई मुझे बताएगा आउट ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्टार्टिंग से नहीं कहा, कहीं से भी आप 11 से स्टार्ट कर लो, 12 से, 13 से, आउट ऑफ 10 consecutive number, how many of them are multiple of 3? कितने नंबर है जो 3 के मल्टीपल है? कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नंबर उठाऊं तो Vinny, Anjali is saying 2, Vinny 3, Nikita 3, Srishti 3, 4 maximum, Divyanshu, Akashdeep 3, Bhavya 3, Nikhil 3. Nishant says 3, 6, 9. My dear Nishant, I told you any of the 10 consecutive number. मैंने कहा भी कहीं से भी स्टार्ट करके देख लो। तो अगर मैं नंबर लूंगा तो डिफरेंट होगा। सुरभि चटवाल 3 or 4 डिपेंडिंग ऑन नंबर। वेरी नाइस। निशांत जी का नंबर आंसर इज 3 नाउ। ओके। श्रेयांश ने कहा 4 है सर। आशी ने कहा मानते नहीं हो तो ये लो 4 लो। अच्छा 4 ऑल्सो, चलो श्रेयांश ने कहा 4 भी हो सकता है सर। दिव्यांशु ने कहा 3 मिनिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा दिव्यांशु? उज्जवल ने कहा 4 होंगे। ओके, दिव्यांशु सेज मैक्सिमम 4। ओके, enough. Now listen to this. I told you every third number in the world is a multiple of 3. So if you pick up first 3 number, one of the number has to be a multiple of 3. The next 3 numbers, again one of the number will be multiple of 3. Next 3 numbers, again there will be a number which is a multiple of 3. A plus 9 will be a number that may be multiple of 3, that may not be a multiple of 3. I never said you start with 1. So मैं कहूंगा 3 तो होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं भाई, डिपेंड करता है पहला नंबर कैसा है। एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. These are 10 consecutive numbers. In first three consecutive number, 3 is the one which is a multiple of this. Second, it is 6. Third, it is 9. And the fourth one is 12. और अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 1 2 3 में 3, 4 5 6, 4 5 6 में 6, 7 8 9, 7 8 9 में 9, लास्ट में 10 बचा. तो how many numbers are there which are multiple of 3? There are 3 numbers which are multiple of 3. I hope it is clear. Okay, very nice. So I have a question for you now. आप सबको ये समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा. बहुत सिंपल सी चीजें, कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने अभी तक. You are given a natural number from 1 to 100. How many numbers are पहला multiple of 2, दूसरा multiple of 4. Let me write complete question. उसके बाद आप इकट्ठा सबके आंसर दीजिएगा. एक ही में आप तीनों के आंसर दीजिएगा. ये कर लेता हूँ इसमें. ये 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा. From 1 to 100, I am specifying from 1 to 100. How many numbers are multiple of 2, multiple of 4, multiple of either 4 or 3? $50, $25, $8. Ujjwal is the first one to answer this. Shreyan, सबके इकट्ठे दे दे यार. Nishant, very nice, but your answer is a little different from Ujjwal's answer. Saloni's answer is also different from others' answer. Very nice. Okay. अच्छा, जो थर्ड आंसर आया आपका, उसमें यार 3 के मल्टीपल 33 तो होते ही हैं, कुछ 4 के भी होते हैं. तो आंसर ये 8 कैसे आया? मैंने ये तो नहीं लिखा इट इज अ मल्टीपल. प्लीज सुनिएगा, कुछ भी उठा के चिपका दिया लोगों ने. मैंने ये नहीं बोला नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 3. तो 4 and 3 दोनों का मल्टीपल है, मतलब 12 का मल्टीपल है. आपका आंसर जो 8 बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, पर भैया मैंने कहा द नंबर इज ईदर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4. अंजलि, आप सीधा ऐड नहीं कर सकती मैम. सोचो क्यों नहीं ऐड कर सकते. There are few numbers which are multiple of both of them. 12 दो बार लिया गया है. 4 का मल्टीपल और 3 के मल्टीपल दोनों में 12 आता है. ऋषिता, वेरी नाइस. सुरभि चटवाल जी, आंसर चेक करो, गलत है मैडम. दिव्यांशु मेरे प्यारे, जरा आंसर चेक करो, थोड़ा गड़बड़ है. श्रेयांश, गुड, वेरी नाइस. आकाशदीप गॉट 50, गुड. Muskan, your answer is also right. Priya Garg, correct. No. प्रिया 49.4. आप किसका बता रही हो? पता नहीं. यस श्रेयांश.
दिव्यांशु चेक करो, कुछ गड़बड़ है भाई। आशीष जी ये 50 एंड 28 किस किस के हैं? पहले का 50, दूसरे का 28। निखिल योर आंसर ऑफ लास्ट वन इज नॉट करेक्ट माय डियर। नहीं आशीष जी, फिर आंसर सही नहीं है, चेक करो। निधि मित्तल, लास्ट आंसर सही नहीं है, अभी अभी बोला भी है मैंने। आपने जो 8 लिखा है इसका मतलब यू वांट अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। मैंने लिखा है द नंबर इज ईदर मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 3। बहुत अंतर है मैम दोनों में। ऋतिक इज सेइंग 1। अच्छा ये ऋतिक, ये 1 किसका? अच्छा फर्स्ट वाले का 50, दूसरे का 25, तीसरे का भी 25। ओके दिव्यांशु जी आंसर अब सही है आपका। अच्छा ठीक है, काफी है, इधर देखिएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are multiple of 2? I'll divide 100 by 2. I'll say 50 numbers are there. How many numbers are there which are multiple of 4? I'll divide by 4. भैया दुनिया में हर चौथा नंबर 4 का डिविजल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर 1 से शुरू हुआ है। तो मैं कहूँगा 25 इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सेकंड से ही लगने चाहिए थे। So I want to find out the number which are multiple of 4. That comes out to be 25. I want to find out the number which are multiple of 3. That comes out to be 33. But there are few numbers which are multiple of both 4 and 3. तो 12 8 are 96। तो मैं कहूंगा कितने नंबर है जो 4 या 3 से डिविजल है? I'll say 25 plus 33। बट ये 8 तो दो बार आ गया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, एक बार तो उड़ाओ यार कम से कम। तो that comes out to be 50. So your answer of the last one will come out to be 50. Survi, now your answer is correct. So any doubt, any query in this, you can ask me. Nikhil agree with the answer. Thank you Nikhil. Okay, Nidhi, not clear. Anyone still having doubt? Can I ask you another question? Are you ready for that? अर्चित कह रहा है तीसरा एक्सप्लेन कर दो। हाँ अर्चित मैं बता देता हूँ यार। देखो भाई ये है नंबर जो 4 के मल्टीपल है, ये है नंबर जो 3 के मल्टीपल है। आपने कहा 25 नंबर होते हैं जो 4 के मल्टीपल होते हैं, 33 नंबर होते हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं। 25 प्लस 33 करा, हमारा आंसर 58 आ गया, हम बहुत खुश हो गए। बट भाई जैसे कुछ नंबर है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, which are counted twice. They are also multiple of 4 as well as a multiple of 3. So don't you think the number which are multiple of both have 4 and 3 are multiple of 12? So 100 divided by 12, I will say 12 8s are 96. I need to separate these numbers because they are coming twice. So answer is 50. सलोनी जी क्या कह रही हैं आप? 12 क्यों नहीं लूं? मैम मैंने कहा either you or I would be selected. इसका मतलब क्या हो गया? आपका और मेरा दोनों का सिलेक्शन हो गया। क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्या पता हम दोनों का सिलेक्शन हो जाए। दैट इज ईदर और। ईदर आई विल प्ले क्रिकेट और आई विल प्ले हॉकी। Does that specify that I am going to play both the games? No, never. So that's why we should not be taking a number which are repeating there. So we are separating it. So ऐसे नंबर जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल है वो नंबर 12 के मल्टीपल होंगे। I have taken LCM of 3 and 4 which is 12 का LCM. सलोनी जी क्या आपको क्लियर हुआ? क्योंकि नंबर दो बार आ रहा, हमने ऐसे किया। ठीक है, ग्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। अर्चित आपको समझ में आया है, क्लियर है? Okay, let's move to the next one. How many numbers are there from 1 to 2000 which are either a multiple of 6 or 8
और 9, इन तीनों में से किसी एक से डिवाइड जाता हो। कौन? फाइंड इट आउट। Srishti, repeat the question. From 1 to 2000, how many numbers are there which are either divisible by 6 or by 8 or by 9? तो ऐसे नंबर कितने हैं जो 6, 8 या 9 के मल्टीपल है? इधर और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर, दैट इज 6, 8 एंड 9. Nishant has given his answer as a 800. So come on, quick, tell me the answers. Okay, quickly. Sorry, I missed it. Nishan, Sagarika, Ujjwal, Divyanshu, all of you have got the answer. Rishita, Palak, Saloni, Muskan, Priya Garg, Akashdeep, Nikita. Many of you have got different answers. शायद 2-3 बच्चों के आंसर एक जैसे हैं, बाकी सबके आंसर तो अलग अलग हैं. निधि जी क्या कर दिया? ये नंबर तो बहुत कम है. निकिता, Akashdeep, I don't know what is the correct answer. Okay, so here am I going to solve this one. So three more answer. Vinny has also given the answer. Rishita, Saloni. Okay, let's see now the answer. कितने नंबर 6 के मल्टीपल होंगे? I'll divide 2000 by 6. दुनिया में हर छठा नंबर होता है, मेरे ख्याल से 333 आया होगा. कितने नंबर 8 के मल्टीपल होते हैं? हमने कहा 2000 by 8. ठीक है, तो ये आ जाता है 125 और 250. Sorry, that gives you 250.
How many numbers are multiple of 9? I'll say 2000 divided by 9. तो 9 2s are 80, 9 2 222. आपने कहा सर कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे जो 6 एंड 8 के दोनों के मल्टीपल होंगे, व्हाई डोंट यू सबट्रैक्ट देम? अब 6 एंड 8 का जो मल्टीपल होता है उसका एलसीएम ले लो, तो नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 24. So what I will do is I will divide this by 250 को 3 से डिवाइड कर दो. 3 8s are 24, 3 3s are 83 numbers are there which are divisible by 24. There are numbers which are divisible by 8 and 9. 72 के डिविजल होते हैं. 72 का डिविजल मतलब इसको 3 से डिवाइड कर लो. 3 2s are 6, 27 numbers will be there. How many numbers are there which are divisible by 6 and 9? I'll say the number are divisible by 18. 18 के मल्टीपल कितने हो गए? तो 18 के मल्टीपल के व्हाट आई डू इज आई विल डिवाइड इट फर्दर बाय 3 व्हिच इज 111. तो ये आ गया आपको. तो व्हाट आई डू इज आई विल फाइंड आउट 3 प्लस 250 प्लस 222 minus 83 minus 27 minus 111. I will add these number all three वाले. तो all three वाले ये कितना हो गया? 72. 8 9s are 72. 72 is already carrying the number which are also multiple of 6. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो 72 का मल्टीपल होगा भाई वो इन तीनों का भी मल्टीपल होगा. तो लास्ट में एक बार आप उनको ऐड कर लेना क्योंकि ये नंबर उड़ गया होगा. I hope it is clear. Yes. Yes. No. श्रेयांश is saying सर नहीं आया. देखो भाई जो 8 और 9 का मल्टीपल है आपने ये उड़ा दिया, बट ऐसा नंबर जो इन सबका मल्टीपल होता है वो सेम है. 8 9 जा 72 और इन सबका मल्टीपल भी सेम होता है. तो ये 72 इज कमिंग आउट टू बी कॉमन. मतलब 8 और 9 का यहाँ पर जो नंबर मल्टीपल आएगा वो यही होगा, दिस पोर्शन होगा, और वो 6 8 एंड 9 का भी मल्टीपल होगा. सो दिस पोर्शन इज कमिंग ट्वाइस. तो लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा. देखो ये नंबर 2 बार आया, आपने एक बार उड़ा दिया, चलो ये चला गया, ये भी चला गया. ये नंबर 2 बार आया, आपने इसको उड़ा दिया. ये नंबर 2 बार आया, आपने उड़ा दिया. तीनों बार ये नंबर हैज बीन सबट्रैक्टेड. Don't you think that once you are going to add this number 72 का multiple which is coming out to be 27, that is what you need to do. Shriyans, is it okay? Saloni, now you tell me, is it clear? Saloni जी क्या आपको समझ में आया जो मैंने बोला है? Okay, great. Anyone is still having doubt in this? So this is the calculation that you need to do and then only you need to subtract the other number. तो अगर आप करोगे तो 333 250 222 ये 27 तो चला जाएगा. पहले इसको कर लो 5 10 805 आ गया. 805 में से आप इसको सेपरेट कर लीजिए. तो 111 and 83 is coming out to be 194. Minus 194 will be your answer. 1. This comes out to be 1. This is 611 will be your answer. You are right, Muskan. Okay. Fine. Anyone having any doubt, please do ask. I'm going to ask you another question now. Okay, here is the next question. How many numbers are there from, I'm taking a simple, मैं इसको थोड़ा complicated बनाना चाहता था पर मुझे लगा पता नहीं क्या बच्चे टेंशन में आ जाएंगे. Which are divisible by either 4 or 8 or 9 or 3. How many numbers are there who are divisible by at least one of the numbers 3 9 4 8 from 1 to 1000? Come on, find out the numbers. चार का दे दिया आपको.
एक्चुअली में 4 का नहीं है, अगर आप लॉजिक समझो तो आपको समझ में आएगा, दिस इज नॉट ऑफ 4.